welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 6 which is peasants and farmers, and आज का जो session है वो है session number 8. So where did opium come from? तो opium जो थी उसका जो आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे opium के बारे में, तो वो कहाँ से आ रही थी. When the British conquered Bengal, they made a determined effort to produce opium in the land under their control. जब ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर किया बंगाल को, तो वो डिटर्मिन थे कि वो प्रोड्यूस करेंगे ओपियम जो लैंड उनके कंट्रोल में अब आई थी. सो दे स्टार्टेड डूइंग दैट. As the market for opium expanded in China, larger volumes of opium flowed out of Bengal ports. Before 1767, no more than 500 chests of 2 mounts each were being exported from India. So as जो मार्केट था ओपियम का वो एक्सपेंड हुआ चाइना में, लार्जर जो वॉल्यूम है ओपियम की दैट केम फ्रॉम द जो बंगाल पोर्ट्स है वहाँ से, तो बंगाल में ओपियम जो है प्रोडक्शन वो बढ़ा. बिफोर 1767 नो मोर देन जो 500 चेस्ट थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से. Within 4 years, the quality trebled. 100 years later, in 1870, the government was exporting about 50,000 chests annually. So within 4 years, अगर हम लोग देखें उसके बाद तो जो 1870 तक जो गवर्नमेंट थी वो एक्सपोर्ट कर रही थी अबाउट 50,000 चेस्ट एनुअली. तो इतना ज़्यादा जो है ओपियम का प्रोडक्शन वो इतना ज़्यादा बढ़ा. Supplies had to be increased to feed this booming export trade, but this was not easy. Now when जो export trade था वो boom कर रहा था and demand थी वहाँ पे, then supply had to be increased क्योंकि वहाँ पे अगर demand है and people will make money when they had the orders. So that is why उसके लिए increase करना बहुत ज़रूरी था, but this was not an easy task to do. How could the cultivators be persuaded to grow opium? For a variety of reasons, they were unwilling to turn their fields over to poppy. Now, how जो cultivators उनको किस तरीके से जो persuade किया जाए कि they should start growing opium on their fields, because वो जो अपना normal crop है वो लगाते थे and उनको persuade करना कि वो सारा वो बंद करके they start growing opium, तो उसके लिए it was a difficult task. फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस वो अनविलिंग थे कि वो अपने जो फील्ड्स हैं उनको टर्न करके पॉपी लगाना शुरू कर दें. फर्स्ट द क्रॉप हैड टू बी ग्रोन ऑन द बेस्ट लैंड ऑन फील्ड्स दैट ले नियर विलेजेस एंड वर वेल मैन्योर्ड. ऑन दिस लैंड पीजेंट्स यूजुअली प्रोड्यूस पल्सेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल the first thing was कि जो ओपियम की क्रॉप है that had to be grown on जो बेस्ट फील्ड है, जो बेस्ट लैंड है वहाँ पे जो विलेजेस के पास है and then well manured है, because it had to be the best land. On this land peasants जो थे यूजली वो प्रोड्यूस करते थे पल्सेस को and they were doing for very long time. So उनको परसुएट करना कि वो अपना पल्सेस हटा के they start putting opium, तो it was a difficult task कि उनको किस तरीके से परसुएट किया जाए. If they planted opium on this land, then pulses could not be grown there, or they would have to be grown on inferior land where harvests were poor and uncertain. Now अगर वो the land which was better than the rest of the land, अगर वो वहाँ पे opium लगाएंगे then they cannot grow pulses there. and अगर वो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे वो inferior हो land, तो वहाँ पे then जो harvest है वो certain नहीं होगी और वो होगी poor quality की. Second, many cultivators own no land. To cultivate, they had to pay rent in lease land from landlords, and the rent charged on good lands near villages was very high. Secondly, जो बहुत सारे cultivator थे वो कोई भी लैंड को ओन नहीं करते थे. थ्रू कल्टिवेट वो रेंट पे करते थे एंड लीज करते थे लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, एंड द रेंट जो है वो चार्ज होता था ऑन गुड्स. जो लैंड है उनके जो विलेजेस के पास हैं उनका हाई होता था. सो इट यूज्ड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैंड, बट कुछ लोग ओन नहीं करते थे, देन दे हैड टू पे लीज या रेंट पे करते थे एंड इस तरीके से वो कल्टिवेट करते थे. Third, the cultivation of opium was a difficult process.
The plant was delicate and cultivators had to spend long hours nurturing it. This meant that they did not have enough time to care for other crops. Now third जो problem थी वो ये थी कि cultivation जो opium का है it was a difficult process. वो इतना इस टाइप की क्रॉप नहीं है कि देन यू कैन जस्ट उसको लगा दें एंड इट विल हैपन ऑन इट्स ओन. उसका बहुत देखभाल करनी पड़ती है बिकॉज इट्स अ डेलिकेट प्लांट. तो कल्टिवेटर्स को उसकी देखभाल में बहुत, उसको नर्चर करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत उसके लिए उनको काम करना पड़ता है. एंड अगर उनको इफ़ दे गिव मोर टाइम टू दिस क्रॉप, ओपियम की क्रॉप को, केवल एक को अगर वो और क्रॉप देंगे देन दे वोंट हैव एनफ टाइम कि वो दूसरों जो दूसरे क्रॉप हैं उसमें ध्यान दे पाएँ. Finally, the price the government paid to the cultivators for the opium they produced was very low. It was unprofitable for cultivators to grow opium at that price. Now finally जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो प्राइस गवर्नमेंट पे कर रही थी कल्टिवेटर्स को for the opium they produce was very low. So that's why वो उतना ज़्यादा तैयार नहीं थे कि वो अपनी क्रॉप को चेंज करके ओपियम लगाना शुरू कर दें. वो उनके लिए अनप्रॉफिटेबल था कि वो ओपियम को प्रोड्यूस करें एट दैट प्राइस. व्हाट प्राइस वाज गवर्नमेंट ऑफरिंग एट दैट टाइम. Unwilling cultivators were made to produce opium through a system of advances. Now government changed their strategy because they wanted to have opium. उनको opium चाहिए था तो उन्होंने अपनी जो strategy है change करी. हम लोगों ने earlier जो slides में discuss किया कि what were the problems, क्या क्या problem थी, इन क्या चीज़ें थी जो रोक रही थी कल्टिवेटर्स को ओपियम उगाने के लिए, ओपियम की क्रॉप लगाने के लिए ना. उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने सोचा किस तरीके से वो परसुए करें एंड उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज करी. अनविलिंग जो कल्टिवेटर्स हैं उनको उन्होंने प्रोड्यूस करने के लिए ओपियम उनको एक तरीके से उनको परसुए करने के लिए उन्होंने यूज़ करा सिस्टम ऑफ एडवांसेस. In the rural areas of Bengal and Bihar, there were large numbers of poor peasants. They never had enough to survive. From the 1780s, such peasants found their village headmen giving them money advances to produce opium. So, rural areas of Bengal and Bihar में there were large number of जो poor peasants हैं वो रहते थे एंड उनके पास कभी भी they never had enough to survive कि उनके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि वो survive कर पाएँ उस पर पूरी तरीके से. तो from 1780s जो इस टाइप के peasants थे उनको जो विलेज हेडमैन थे वो मनी एडवांसेस देने लगे टू प्रोड्यूस ओपियम. सो बिकॉज दे डिडंट हैव इनफ मनी टू सर्वाइव, उनके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं थे, तो इस तरीके से उनको परसुए करने के लिए उनको एडवांस जो है मनी वो दिया जाने लगा सो दैट दे विल ग्रो ओपियम. By taking the loan, the cultivator was forced to grow opium on a specified area of land and hand over the produce to the agents. Once the crop had been harvested, he had no option of planting the field with the crop of his choice or of selling his produce to anyone but the government agent. Now, because उनको एडवांस में लोन दे दिया जाता था and that is why cultivator जो थे वो उनको एक तरीके से फोर्स होना पड़ता था कि वो ओपियम ही क्रॉप लगाएं अपने एक स्पेसिफाइड जो भी लैंड था उनका वहाँ पे एंड वो जो हार्वेस्ट हो जाता था तो वो उसको जो गवर्नमेंट एजेंट है उन्हीं को वो देते थे, वो किसी और को वो बेच भी नहीं सकते थे एंड दे कैन नॉट ग्रो एनी अदर क्रॉप, वो नहीं लगा सकते थे एंड किसी भी अपनी चॉइस के अगर वो चाहें कि वो बेच दें किसी और को, इफ दे वांटेड टू सेल इट टू सम अदर देन द गवर्नमेंट एजेंट, वो ऐसा भी नहीं कर सकते तो उनको उसी एजेंट को बेचना भी होता था. The prices given to the peasants was so low that by the early 18th century, angry peasants began agitating for high prices and refused to take advances. Now, prices जो गवर्नमेंट उनको ऑफर कर रही थी that were so low, इतने ज़्यादा कम थे कि then early 18th century में जो peasants थे they became angry, उन्होंने agitation start किया कि वो इतने कम प्राइस पे क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे एंड उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया एडवांसेस लेना. सो इट वाज दैट लो कि एटलीस्ट वो लोग भी जो उनके लिए हार्ड था सर्वाइव करना, इवन दे स्टार्टेड एजिटेटिंग कि वो इतना कम प्राइस पे काम नहीं करेंगे.
By 1773, the British government in Bengal had established a monopoly to trade in opium. No one else was legally permitted to trade in the product. By 1773, जो British government है बंगाल में, उन्होंने establish किया एक monopoly वो ट्रेड करने के लिए ओपियम. तो that means कि only they will trade. That's the monopoly की पूरे जो भी मार्केट है उन पे एक एक ही आदमी जो है वो काम करेगा, उसको बोलते हैं मोनोपोली होना. नो वन एल्स जो था वो लीगली परमिटेड था कि वो ट्रेड करे इस प्रोडक्ट में. By the 1820s, the British found to their horror that opium production in their territories was rapidly declining, but its production outside the British territories was increasing. Now, by 1820, जो Britishers थे, they found कि उनके जो opium production उनकी territories में बहुत rapidly decline हो रहा है, but उसका जो production था outside जो British territories थी वहाँ पे increase हो रहा था. The conflict between the British government, peasants and local traders continues as long as opium production lasted. तो जो ये conflict था जो इन सारे लोगों के बीच में था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, peasants थे and local traders थे. So they all three were involved in this, जो opium का production and selling and all that था. तो ये जो उनका कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यू किया एंड इट लास्टेड एज लॉन्ग एज जो ओपियम का प्रोडक्शन है वो चला. सो ये जो एक जो कन्फ्लिक्ट है वो पूरे टाइम चलता रहा जब तक ओपियम का जो एक्सपोर्ट था वो चला. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन कि किस तरीके से ओपियम जो है हाउ गवर्नमेंट दे परसुएडेड जो कल्टिवेटर्स हैं उनको कि वो ओपियम को ग्रो करें बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपोर्ट इट एंड हाउ देन दे सक्सीडेड कि कुछ लोगों ने उसको ओपियम को उगाना भी शुरू किया. बट इन द प्राइस इतना ज़्यादा कम था कि देन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत जब तक ओपियम का ट्रेड चला तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहा. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.